Hello students, I'm Himani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another session of YouTube in which we are going to be solving the questions related to your ICT, right? तो ICT के previous year questions की ये series होगी जिसमें information and communication technology में जो 2023 में questions December वाले shift में पूछे गए थे, उन questions को we will be taking a look at, we will be analyzing them, we'll also be making sure that we are being catered with or to with regards to the right options, the right answers with the right explanations, right? So ये जो part 1 है ये आपके 6th and 7th December 2023 में जो questions पूछे गए थे on the examination held on these dates, उन questions को we will be proceeding forward with, right? So without any further ado, let's just take a look at the first question that we all have here. That is, in comparison to the secondary computer storage, primary storage is what? Is it more slower, expensive per unit of storage and persistent? Faster, less expensive and persistent? Faster, more expensive per unit of storage and not persistent, or faster, less expensive per unit of storage and not persistent? So what do you think is the right answer here? Make sure that you're reading the question carefully and then trying to moving forward with the answers as well, right? ध्यान से question को पढ़ना है, then try to move forward by answering the questions perfectly, right? So you can pause your screens as well if you feel like you need extra time. किसी को extra time चाहिए तो you can pause your screens, right? Memory hierarchy as a different topic in a YouTube video I have already discussed in the class as well. YouTube class में हम लोग ने memory hierarchy के बारे में बात करी हुई है, right? So primary storage जो है उसको अगर आप secondary storage के साथ compare करते हो तो primary storage कैसी होती है? The right answer is option C here. Faster, more expensive and not persistent. अच्छा, जब हम memory hierarchy की बच्चे बात करते हैं, we get to see that in memory hierarchy we do create levels here. सबसे ऊपर हमारे registers आते हैं, the fastest memory. Then we have CPU cache memory. Then the primary memory. Then we have the secondary memory, जो हमारी pen drives and everything like that. Then we have the tertiary memory, CDs etc. CD, DVD, floppy disk etc. ठीक है? तो जब हम बात करते हैं registers आपके fastest होते हैं, तो यानी कि यहां से आते आते ये आपकी स्लो डाउन हो जाएगी स्पीड, यहां पे फास्टेस्ट होगी स्पीड आपकी हमेशा, यानी कि आपका एक्सेस टाइम, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में ये वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक्सेस टाइम क्या होता है? द टाइम दैट अ डिवाइस नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू योर रिक्वेस्ट. आपने कुछ टाइप करा, कितनी जल्दी वो चीज का आंसर मिला आपको, कितनी क्विकली द डिवाइस रिस्पॉन्डेड. तो क्विकली फास्टर टाइम आपकी यहां पे आपकी जो प्राइमरी स्टोरेज है ये वाली, ये हमेशा फास्टर रहती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज. तो एज कंपेयर टू सेकेंडरी से हमारी प्राइमरी स्टोरेज जो है वो क्या है? फास्टेस्ट है. एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव इन द सेंस ये सबसे चीप होगी, चीपेस्ट आपको मिल जाएगी फ्लॉपी डिस्क, सीडी. एंड ऊपर जाते जाते रजिस्टर्स आपको सबसे एक्सपेंसिव मिलेंगे, यानी कि रेट बढ़ता जाता है. आप पेन ड्राइव लोगे वो सस्ती मिलेगी, आप हार्ड डिस्क ड्राइव लोगे वो महंगी मिलेगी, आप रैम खरीदोगे वो महंगी मिलेगी, रैम की चिप, राइट? सो एक्सपेंसिव बढ़ती जाती है, फास्टर सबसे ऊपर वाली होती है प्राइमरी स्टोरेज सारी यहां से शुरू हो जाती है, राइट? जिसमें रैम रोम आ जाती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज में, ठीक है? दैट्स वाई ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी दो टर्म्स ऑन द नेक्स्ट पेज हैं, देन आई विल शो यू द ऑप्शंस. तो ट्राई टू मैच द टर्म्स with the GUI term with their description. पॉज करें, पढ़ें, पॉज करें, पढ़ें. ऑप्शंस, what is the right answer here?
The right answer to this question is option C here. A:4, यानी कि अगर हम बात करें हमारा representing an area on the screen that displays information is a window. ठीक है, विंडो represent करती है B:1, यानी कि ये हमारा आइकन होता है. छोटे छोटे आइकन्स देखे होंगे ना आपने अपने डेस्कटॉप के ऊपर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स जो represent करते हैं. तो B:1, C:2, मेन्यू इज लिस्ट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, तो ये आपका मेन्यू हो गया कि इसमें से चूज कर लीजिए. एंड देन वी हैव D:3, पॉइंटर टू पॉइंट एंड सिलेक्ट फ्रॉम ऑप्शंस, आइकन्स, क्लोज, ओपन, विंडो को करने के लिए वो पॉइंटर यूज होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is or are true regarding ICT? कि encryption होती है scrambling of data and destroying computer viruses and preventing unauthorized access to your computer system. Microblog is very much restricted on the size of post and is very difficult to customize. LAN always uses wireless technology to transmit data. Which one of the following are true? Try to choose the answer here. You can pause your screens as I told you. What should be the answer here? The answer to this question is option B here. That means हमारा जो माइक्रो ब्लॉगिंग होता है वो उसका साइज रिस्ट्रिक्टेड होता है. माइक्रो ब्लॉगिंग में द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज ट्विटर. ट्विटर के ऊपर आप सिर्फ कुछ एक कैरेक्टर्स, कुछ एक शब्दों में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लिमिट में लिख सकते हो. तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड टू कस्टमाइज एज वेल. इट्स वेरी शॉर्ट पोस्ट. ट्विटर पे बड़ी छोटी छोटी पोस्ट्स आती हैं. अच्छा, इंक्रिप्शन, स्क्रैम्बलिंग ऑफ डेटा तो नहीं होता है एंड इट डज नॉट प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस. इनक्रिप्ट होना चीज का मतलब ये नहीं है. इनक्रिप्ट होना मतलब वो सिक्योर है. इंक्रिप्शन का मतलब होता है आपका डेटा अगर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इट इज ट्रैवलिंग, हम व्हाट्सएप से फोटो इधर से दूसरे इंसान को भेज रहे तो वो इनक्रिप्टेड है. इट मीन्स इट्स सेफ बट इट डज नॉट गारंटी एज द सिक्योरिटी कि वो वायरस को प्रिवेंट करेगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा. नो. सो ऑप्शन ए रॉन्ग है. एंड देन दिया हुआ है LAN. LAN always uses wireless technology to transmit data. No, LAN wired भी होती है, वायरलेस भी होती है. तो वायरलेस ही नहीं यूज करती. Next question. Match list 1, that is your input device with its most appropriate usage. Very easy question though. Take your time. Pause your screens. Let's try to decode the answer. Barcode reader जो है, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, फूड आइटम परचेज करते हो तो पॉइंट ऑफ सेल्स जो है टर्मिनल, वहां पे वो बारकोड स्कैनर से दे रीड द बारकोड. माइक्रोफोन टू क्रिएट अ वॉइस ओवर अ प्रेजेंटेशन, माइक्रोफोन में बोलते हो. स्कैनर टू एंटर हार्ड कॉपी इमेजेस इनटू कंप्यूटर, टर्न इट इनटू अ सॉफ्ट कॉपी, स्कैन करके आप करते हो अपनी डॉक्यूमेंट्स को. माउस टू सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम अ मेन्यू इन अ सॉफ्टवेयर. सो A3, B4, C1, D2. A3, B4, C1, D2. Option A is the right answer here. Next question. An output device that creates an object by building layer upon layer of material is called 3D printer. It is widely used in CAD applications. CAD stands for Computer Aided Design. Second statement, laptops can be used even when not plugged into an electricity socket. What is the right answer here? The right answer to this question is option A here, that both the statements are true. Yes, of course, जो printer आपके 3D prints create करने के लिए 2D images में से बनाया जाता है, that is known as 3D printer. Second, laptops आप charge कर लो, you can carry them anywhere without plugging them back in the electricity socket, you can use them, right? So option A is the right answer here. Next,
A computer uses RAM and ROM to store data. Which of the following statement describing ROM, read-only memory, is or are true? What is the right answer here? Option D is the right answer here. That is, it is used to boot up the computer when power is turned on. ROM की चिप पे डेटा एक बार लिख दिया, read only memory है. So whosoever programs the ROM chip, the data is written for once and for all. Right? So it means that what will happen here, अगर आप कंप्यूटर अपना लैपटॉप है, you are plugging, you are turning it on, switching it on using only one button, रोज उसी बटन से ऑन ऑफ करते हो, वो रोम चिप पे डेटा लिखा हुआ है, वो रोम चिप पे प्रोग्राम हुआ है. राइट? सो इट दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपकी कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन कौन होल्ड करता है, दैट इज रोम. इट्स कंटेंट्स आर रीटेन्ड इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ. आपका लैपटॉप बैटरी की वजह से बंद हो गया, लाइट चलेगी, कुछ हो गया, रोम वैसे ही रहेगी. यानी कि आप अगर एक ही प्लग से कंप्यूटर ऑन ऑफ करते हो, वहीं से ऑन ऑफ होएगा. राइट? पहली स्टेटमेंट जो है ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो दी गई है, ये हमारी दी गई है रैम के लिए, दैट इट स्टोर्स द प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली इन यूज. दैट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 इंटरनेट टर्म विद इट्स डेफिनेशन. HTTP, URL, MAC address, IP address. Please pause करके read the statements. The right answer is option A here. That is A is to 2. HTTP is the main protocol. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. ठीक है? So A is to 2. ये आपका मेन प्रोटोकॉल इंटरनेट की वर्किंग के लिए चाहिए होता है. देन B is to 4. That is URL. URL होता है जो आप सर्च बार में टाइप करते हो. ठीक है? This is URL. Right? Then C is to 1, MAC address, media access control address, a unique address given upon a network to a device provided by the manufacturer. अच्छा, MAC address क्या होता है? You purchase a device from a manufacturer. आपने Dell का लैपटॉप लिया, HP का लैपटॉप लिया, etc. There will be a MAC address that will be unique for each and every person in the entire world. So यहाँ पे जो आपकी डिवाइस का लोकल एड्रेस विच द मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड, दैट इज मैक एड्रेस. आईपी एड्रेस इज वेयर द इंटरनेट ऑन योर डिवाइस इज वर्किंग फ्रॉम. सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क और द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करता है. Next question, which of the following is an online storehouse of all the academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheets, etc.? What is the correct answer here? The correct answer is option D, NAD. यानी कि आपकी नेशनल एकेडमिक डेपोजिटरी में आपके सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, डिप्लोमाज, मार्कशीट्स एक्सेट्रा स्टोर होती हैं ऑनलाइन उसमें. And they are as much valid as a normal hard copy would be. ठीक है? Next question. Identify the correct sequence of the missing units of data, right, that can be used to represent the size of file as it changes in size. The units of data increase in size from smallest to largest. तो smallest दी हुई है bit, largest इन्होंने हमें दी हुई है TB. तो जो blanks दी हुई है इनको you are supposed to fill with these ones. What should be the answer here? What should be the answer here? The answer is option A here, DACB. बिट के बाद आपकी निबल आएगी which is 4 bits. देन आपकी बाइट आएगी, किलोबाइट, मेगाबाइट,
gigabyte. So nibble byte MB GB, nibble byte MB GB. Option A is the right answer here. Next, wiki is usually, wiki as in Wikipedia, is usually represented in reverse chronological order, whereas blog has a structure determined by content and its users. Statement 2, blog is usually personal या someone's opinion, whereas wiki is usually objective. In the light of the above statements, आपको choose करना है what is the right answer here. What is the right answer here? The right answer to this question is option D, which says that statement 1 is incorrect. Yes, of course. Wikipedia कभी भी reverse chronological order में नहीं चलता. वो it depends on what topic is being discussed. Topic और उसके ऊपर चलता है कि टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा है, कौन उसको एडिट कर रहा है. इस वजह से पहला ऑप्शन गलत है. राइट. स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि हाँ जी, ब्लॉग में लोग अपना खुद की पर्सनल ओपिनियंस एक्सेट्रा को दर्शाते हैं, whereas विकिपीडिया पे यू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक्स, मूवीज, ऑब्जेक्टिविटी वाली. ठीक है. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following about firewalls in computer networks are true? Read the statement carefully. What is the answer here? The answer to this question is option B here. That is B and E only. अच्छा, फायरवॉल क्यों यूज किए जाते हैं? आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट द डेटा डज नॉट गेट लीक्ड एनीवेयर. सो दे आर सॉफ्टवेयर, दे आर नॉट हार्डवेयर डिवाइसेस. तो ऑप्शन 1 इससे ही कट हो जाता है. Firewalls will automatically stop any malicious traffic. No, you will have to set rules for network traffic. इसलिए B option correct है. Firewalls backup all data? No, they don't. बट वो प्रोटेक्ट करते हैं. कैन बी यूज टू ब्लॉक एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट्स. एंड ये फायरवॉल्स आपको बताएंगे कि दिस वेबसाइट इज इनसिक्योर, इज नॉट सिक्योर. राइट. तो उस वेबसाइट को आप सोच लो कि यू वांट टू प्रोसीड विद द सेम और नॉट. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. नेक्स्ट, अगेन टर्म्स. Options. The right answer is option C here. That is A is to 3. A is to 3. OCR करना, यानी कि आप OCR कर रहे हो, इमेजेस को स्कैन करके यू आर कन्वर्टिंग, यू आर टेकिंग द कैरेक्टर्स. आप मान लेते हैं कोई बुक ले लिया आपने, आपको वो बुक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में चाहिए, आप उसको स्कैन करते हो तो वो वर्ड्स रीड करके उनको कॉपी पेस्ट करने देता है. दैट इज OCR. राइट. रीडिंग डेटा डायरेक्टली फ्रॉम हार्ड कॉपी एंड कन्वर्टिंग इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट, ये OCR होता है. B is to 1 हियर. दैट इज OMR. पेंसिल और पेन मार्क्स आपकी OMR शीट्स में से पढ़ना. ठीक है. ये OMR होता है. प्री डिटर्मिन्ड स्पेसेस, ABCD के लिए प्री डिटर्मिन्ड स्पेसेस होती हैं. देन वी हैव C is to 4. RFID होती है माइन्यूट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. छोटे छोटे टैग्स लग जाते हैं. जैसे यू गाइज वुड हैव सीन दैट टोल प्लाजास पे कुछ गाड़ियां विदाउट पर्ची कटाए चली जाती हैं, बिकॉज दे हैव RFIDs इंस्टॉल्ड. देयर आर सर्टेन टैग्स एंड दोज इंफॉर्मेशन, दोज वेव्स एटसेट्रा, दे कैन बी रेड फ्रॉम डिस्टेंसेस. तो वो टोल प्लाजा से खुद ऐसे जो है वो ओपन हो जाता है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द टैग इन फ्रंट ऑफ देयर कार्स एंड दैट इंफॉर्मेशन इज रेड एंड लेट्स द डिवाइस और द कार पास. ठीक है. तो RFID ये हो गया. देन होगा हमारा लास्ट MICR, सिस्टम दैट रीड्स प्रिंटेड इन अ स्पेशल इंक.
तो ये जैसे आपके बैंक पे, आपके चेक पे, या आपके कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट कार्ड पे जो कैरेक्टर्स अलग स्पेशल लिंक से लिखे जाते हैं वो MICR होता है। नाउ द होमवर्क फॉर यू ऑल इज कि आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे OCR, OMR, RFID एंड MICR की फुल फॉर्म्स लिख के बताएंगे, सो दैट आई नो दैट यू गाइज नो अबाउट दीज थिंग्स एंड आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, राइट? बिकॉज फुल फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, कीप ऑन स्टडिंग।